All right. So we are going to start with these questions are from Cantor publication, and we are going to start with question number 3. So question number 3 is, I'm writing reference here so that you can, use that reference later on. It is exercise 1.5 of Cantor publications, right? So we are going to start with question number 3. So question number 3 is, a Pakistani textile factory produces 1200 meters of fabric every day, right? So each day they use 1/5 of the fabric produced. So first of all, how much fabric is produced every day? I'm going to write down the data. So the fabric produced is basically 1200 meters every day. So 1200 meters per day, every day. Okay? So this is how much fabric they produce. So now the question is that they use 1/5 of the produced fabric plus 10% of the remaining fabric from the previous day. So you need to find out how many fabric is left after 7 days. Okay? So we need to manually calculate because there is no other way of doing it. There is no formula. So because the value is changing every day. So how we are going to do this question, we will calculate what is the leftover fabric at day 1. Then we will find out the leftover product fabric at day 2, and we will move on till day 7, right? Because why we are doing this for every day, because the total number of fabric is different every day, right? So day 1 pay, the production is 1200. So I'm using the same pattern ताकि आपको आसानी हो. Production कितनी है fabric की? It is given in the question. So daily production is 1200 meters. ठीक है? So production is 1200 meters. So now I'm saying how much is the how much was used. ठीक है? So used is, अब आपने ये याद रखना है, used is 1/5 of this 1200. ठीक है? Plus they are using 10% of the fabric from the previous day. So but this is day 1 of the production, so it means कि previous day का तो हमारे पास कुछ fabric है ही नहीं, तो वो that is not used. So I'm putting this 0 here because there was no production yesterday. All right? So it means that on day 1 they have used, अगर आप इसको calculate करें, 1200 divided by 5, so it is 240 meters. So they have used 240 meters on day 1. It means that the remaining would be, कितना fabric बच जाएगा first day. So the remaining fabric would be, if we minus 1200, 240 from 1200, so the remaining fabric would be 960 meters. Is this first day calculation clear to you? Is this clear how we have done it? Yes, ma'am. Okay. What about Hadia and Abgine? Yes, ma'am. Very. All right. Is the situation clear? What is the situation? देखें, आपने ये बात समझनी है. Word problems में the most, I think so, challenging part is understanding the word problem. So question हमारे पास ये है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 1200 मीटर फैब्रिक हर दिन बनता है. ठीक है? आउट ऑफ दिस 1200 फैब्रिक जो हर दिन बनता है, 1/5 जो है वो यूज करती है फैक्ट्री, और जो पिछले दिन का बचा हुआ होता है ना, उसका 10% भी यूज करती है. ठीक है? सो ये दो चीजें यूज होती हैं. एक एक 1200 का 1/5 हर रोज यूज होता है, और एक जो पिछले दिन का बचा हुआ फैब्रिक होता है ना, उसका 10% दे यूज. ठीक है?
सो वो हमने हर दफा हर दिन का कैलकुलेट करना है एंड देन वी विल से कि कितना बच गया है उस दिन ना, ठीक है, बिकॉज इट वाज डे वन, so the last day production was zero, so we have added a zero here, ठीक है, and then we have calculated how much is the remaining fabric. So now comes day two. Day two में भी production हमारे पास कितनी है, the new production, ठीक है, production हमारे पास कितनी है, it's 1200 meters, that is the production daily, ठीक है, 1200 मीटर फैब्रिक जो है वो आपकी डेली प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यूज्ड फैब्रिक। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। यूज फैब्रिक कितना हुआ, एक तो 1/5 ऑफ 1200 यूज हुआ, यानी हर रोज जो 1200 बनता है उसका 1/5 जो वो टेक्सटाइल कंपनी है वो यूज करती है, प्लस यहाँ पर अब ये जीरो नहीं आएगा। ये जीरो क्यों था, बिकॉज इट वॉज डे वन। सो नाउ यू विल से 10% ऑफ 10% ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। सो रिमेनिंग फैब्रिक कितना था, 960। ये if this is clear to you, so you it means you have understood the question. जी बेटे, is this clear? ठीक है, कितना कंपनी यूज करती है, 1/5 of that day's production plus 10% of the remaining one. So यहाँ पर जीरो क्यों डाला था, because it was day one. डे टू पे जो रिमेनिंग है वो कितना है, जो डे वन में बच गया था, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये 1/5 ऑफ 1200 इज 240 प्लस 10% ऑफ 960 इज 96। सो सेकेंड डे पे कंपनी ने कितना फैब्रिक यूज किया, कंपनी ने यूज किया 336 meters, ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द रिमेनिंग वन, हु कैन टेल मी कितना फैब्रिक अब बच गया है डे टू पे, व्हाट इज द रिमेनिंग फैब्रिक। जी बेटे, हु कैन टेल मी व्हाट इज द रिमेनिंग फैब्रिक। कैन एनीवन टेल मी कितना फैब्रिक बच गया, जैसे यहाँ पर हमने किया 1200 माइनस 240, तो आज कितना फैब्रिक बच गया डे टू पे। हादिया, व्हाट डू यू थिंक बेटे। बेटे प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आंसर माय क्वेश्चन आल्सो। सो हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट, एक तो हमने वो ही किया कि कंस्ट्रक्शन में से 240 यूज हो गया तो हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है, प्लस हाउ मेनी वुड बी, माहीन। And 20%. देखिए आपने ये बात समझनी है कि आप रिमेनिंग फैब्रिक जो है ना वो दो तरह का फैब्रिक है, एक जो आज प्रोडक्शन हुई है उसमें से कितना बचा, देखिए आज प्रोडक्शन हुई है 1200, उसमें से 240 माइनस करना है, तो ये एक बचा हुआ आ जाएगा। फिर हमने ये 96 भी तो माइनस करना है, ये किस में से माइनस होगा, इस 960 में से, बिकॉज 960 कल का फैब्रिक बचा हुआ था और उसमें से 96 सिर्फ यूज हुआ। ये बात समझ आ रही है, देखिए टोटल बचा हुआ फैब्रिक कितना होगा, इफ वी कैलकुलेट इट, तो ये आपके पास आ जाता है 1824, ठीक है। आई हैव सॉल्व्ड इट थ्रू कैलकुलेटर। सो ये आपके पास कितना आ जाता है, 1824। इज दिस क्लियर। मैम ये जो आपने लास्ट पार्ट किया है उसमें मैं थोड़ी सी हम्म, कंफ्यूज हूँ, क्या आप अगेन एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी बेटे, देखिए आपने ये बात समझनी है कि जो आ, ये तीन चीजें आपने समझनी है, एक प्रोडक्शन है जो हर दिन नया कपड़ा बनता है उस टेक्सटाइल फैक्ट्री में, एक यूज कितना हो रहा है,
और तीसरी चीज है कि अब हर दिन में स्टॉक कितना बच गया है। ठीक है, प्रोडक्शन तो हर दिन की 1200 मीटर है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, यूज कितना करना है हमने, हमने इस 1200 का 1/5 करना है, प्लस हमने 10% जो कल का फैब्रिक बचा हुआ है ना, 10% ऑफ दैट फैब्रिक इतना यूज करना है उस कंपनी ने। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे ये 10% वाला चीज जीरो थी बिकॉज इट वॉज डे 1। डे 2 पे ये 10% आप किससे निकालेंगे, जो डे 1 का रिमेनिंग फैब्रिक था। ठीक है, अब आपने यस प्रोडक्शन मैम। आपने हमेशा लिखनी है 1200, यूज्ड कितना हुआ 1200/5 प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट पिछले दिन की। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया। अब जब आपने रिमेनिंग फैब्रिक निकालना है, यानी डे 2 पे कितना फैब्रिक कंपनी में बच गया है, तो आपने 1200 में से 240 माइनस किया है, और फिर आपने 960 में से 96 यूज किया माइनस किया। 1200 में से 240 यूज हो गया है, और 960 में से कितना यूज हो गया है, 96 यूज हो गया है। तो जो दोनों में से चीजें बच रही हैं वो आप ऐड कर देंगे, तो दूसरे दिन कंपनी के पास कितना बचा हुआ फैब्रिक होगा, इट वुड बी 1824। आर यू क्लियर नाउ माहीन? यस मैम। ओके बेटे, नाउ द सेम पैटर्न, बिकॉज हमने डे 7 पे निकालना है कितना रिमेनिंग फैब्रिक है। अब हम देखते हैं डे 3 पे क्या है। देखो डे 3 पे प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑन डे 3? 1200। 1200 अगेन। ठीक है, कंपनी हर रोज 1200 मीटर फैब्रिक बना रही है। नाउ व्हाट इज द यूज्ड फैब्रिक, कितना कंपनी ने वन उस दिन यूज किया? बिल्कुल, बाय वन फाइव। बाय फाइव ऑफ 1/5 12 मल्टीप्लाई बाय 1200। ये हर 1200। रोज यूज करती है। नाउ हाउ मच इज द यूज्ड फ्रॉम द प्रीवियस डे, पिछले दिन का कितना यूज करना है, पिछले दिन 10%। का 10% यूज करना है। सो 10% ऑफ, अब पिछले 960। दिन की अमाउंट 960 नहीं है, पिछले दिन की अमाउंट कितनी है अब, डे 2 पे रिमेनिंग अमाउंट 18 कितनी है? 1824। 1824। 1824, दैट्स राइट। अब देखें, ये आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 240, और 10% ऑफ 1820, इसका आंसर होगा 182.4। इफ यू ऐड द टू वैल्यूज, तो ये आपके पास आता है 422.4 मीटर। अब देखिए सेकेंड डे पे इतना फैब्रिक जो है वो यूज हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग फैब्रिक, बचा हुआ कितना फैब्रिक है? हाउ मच इज द रिमेनिंग फैब्रिक? एक तो आज की प्रोडक्शन थी ना, उसमें से माइनस करना है हमने हमेशा 240। ये बात 1200 क्लियर है ना? माइनस 40। यस हाँ मैम। जी। ठीक है, आज की प्रोडक्शन में से मैम 240 माइनस हुआ, प्लस हमने जो बचा हुआ था, यानी कि कितना बचा हुआ था कल, 1824 बचा हुआ था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 182.4, बिकॉज इतना हमने आज के दिन में यूज कर लिया। ठीक है, यस। सो इफ यू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, सो आपके पास डे 3 पे जो आंसर आता है, इसको माइनस करके और ऐड करके, वो आपके पास आता है 26,601.6 मीटर्स। इतना आपके पास थर्ड डे पे रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। व्हाई? बिकॉज द Why? रिमेनिंग Because the प्रोडक्ट remaining इज product is चेंज्ड एवरी डे। changed ठीक है, every day. यस। ठीक है? एंड बिकॉज दिस इज And because चेंज्ड, so the used product is also changed. So now we will write down how much is the value on day 4. So what is the production on day 4? 1200 मीटर। Very good. Production is still the same. Company ने हर रोज उतनी amount बनाते जाना है. So production is 1200. ठीक है. How much is used on day 1 4? by
That's right. 1 by 5. 1 by 5 of 1 plus 10% of what? मामा बुलाए 10% ऑफ वो पिछले वाले का 10% डे 3 का डे 3 का 10%। डे 3 की जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 10%। इसका मतलब है 2601.6, इसका 10%। 1.6 यस ठीक है, मैम अब देखिए 1200 का 1 by 5 इज, वी ऑलरेडी नो इट्स 240। यस मैम ठीक है, सो नाउ 10% ऑफ दिस, सो आप डेसिमल को एक स्टेप और मूव कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 260.16। ठीक है, नाउ इफ यू ऐड द टू वैल्यूज, सो ये आपके पास आ जाता है पूरा 500.16 मीटर उस कंपनी ने डे 4 पे यूज किया है। ठीक है, सो नाउ हाउ मच इज द रिमेनिंग अमाउंट? रिमेनिंग अमाउंट कितनी है? रिमेनिंग फैब्रिक कितना है? सो इट इज द सेम थिंग। 1200 minus 240 1200 minus 240 plus and then plus plus 260 2601 ये लिखेंगे तो हाँ जी, 2601.6 माइनस क्या करेंगे जो यहाँ पर आपने यूज किया, तो इसमें से कितना यूज आपने कर लिया है? 260.16 यूज कर लिया। ठीक है, so now you need to Yes. calculate the remaining amount of fabric on day 4. So 4 day 4 पे if you calculate the remaining amount, ये आपके पास आती है 3301.44 meters। ठीक है, ये क्या है? Yes, आपका रिमेनिंग अमाउंट ऑन डे 4। ठीक है, yes ma'am yes ma'am so you will calculate the same thing for day 5। हमने डे 7 पे निकालना है रिमेनिंग अमाउंट, so you need to calculate it manually because the values are changing every day. So what would be the production on day 5? 1200 meter 1200 meters। ठीक है, the production is 1200 meters। So now what, how much company is using on day 5? So 1 how by much is used? That's right, ये तो फिक्स अमाउंट है, 1 by 5 of 1200 कंपनी डेली यूज कर रही है, प्लस yes ma'am 10% ऑफ 10% of 3301.44 वेरी गुड 3301.44। ठीक है, 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियस डे। ठीक है, yes सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आती है 240 प्लस 10% ऑफ, अगर ये मैं निकालूं तो ये आप डेसिमल मूव कर लें तो ये आपके पास आता है 330.14, और जो टोटल यूज्ड वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 570.14 meters। ठीक है, now we need to yes calculate how much fabric is remaining on day 1200 minus 5। 40 So that's right, 1200 minus 240 plus and then 570 point प्लस and जितना पिछले दिन रिमेनिंग था उसमें से हमने क्या निकालना है? उसमें से हमने ये वैल्यू निकालनी है 330.14। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना बेटे? yes इट्स ma'am. द कि कल कितना फैब्रिक बचा था उसमें से जितना यूज हो गया द रेस्ट विल कम एज द रिमाइंडर। सो इसकी वैल्यू आपको पता है, एवरी टाइम वी आर कैलकुलेटिंग। सो द फाइनल आंसर, लेट मी कैलकुलेट द फाइनल आंसर। सो डे 5 पे जो रिमेनिंग है आपके पास फैब्रिक वो है
3,931.3 meters. This is the remaining fabric on day 5. 5. ठीक है? So same Yes. is the case. It's a lengthy Yes. question, but it's not difficult question. अगर आपको question की समझ आ गई है, so then it's just the Yes. calculation you need to do. So on day 6, Production 1200 meter. that's right, production is still same. So production is 1200. I'm using shortcuts. P for production, R for remaining. So production is 1200. How much is the used? 1/5 multiplied by 1 by 1200 5 multiplied by 1200 plus plus 10% 10% of of. 3931.3 meters. That's right, 3931.3. ठीक है, तो पिछले दिन जितना फैब्रिक बचा, ये आपको पता है 240 है, और इसमें अगर डेसिमल को एक स्टेप मूव कर लें तो ये आपके पास बन जाता है 393.1. ठीक है, तो यूज्ड फैब्रिक आपका डे 6 पे क्या है? इट इज 633.1 मीटर्स. ये आपका डे 6 पे यूज्ड फैब्रिक है. ठीक है, Yes, सो ma'am. नाउ वी विल फाइंड आउट द रिमेनिंग वन. कितना बच गया टोटल? सो 1200 में से हमने कितना यूज किया? जो आज के दिन 1200 प्रोडक्शन हुई है, उस 1200 में से हमने कितना यूज किया? 240 यूज किया. और जो कल का रिमेनिंग था पिछले दिन का, दैट इज 3931.3, उसमें से हमने कितना यूज किया? 393.1. ठीक है, सो इसकी फाइनल आंसर अगर हम कैलकुलेट करें, लेट मी कैलकुलेट इट क्विकली. डे 6 पे ये डेट 6 पे मेरी रिमेनिंग फैब्रिक इज 4,498.1 meters. ठीक है, दिस इज योर remaining fabric on day 5. So now we will do the last calculation for last day. Sorry. So for day 7, what is the production on day 7? Production is still 1200 meters. ठीक है, but I hope this is clear. It's just we are repeating the same thing again because there is no other way. ठीक है, production is again the 1200 meters. Now how much is used? एक तो हमने यूज करना है 1/5 of the production, प्लस हमने क्या यूज करना है? 10% ऑफ. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. नाया, यू जॉइंड लेट बेटे. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कितनी कंपनी यूज कर रही है कितना फैब्रिक? 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन प्लस 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑफ प्रीवियस डे. तो पिछले दिन हमारे पास कितना बचा था? 4,498. ठीक है, इतना कंपनी फैब्रिक यूज करी है. इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हम 240 है, 1200 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, अगर आप 10% ऑफ दिस वैल्यू निकालें तो जस्ट मूव द डेसिमल वन स्टेप, वरना कैलकुलेटर यूज कर लें तो ये आपके पास 449.8 बनता है. ठीक है, एंड योर आंसर इज बेसिकली 0.8, 9, 8 and 6. 689.8 मीटर फैब्रिक डे 7 पर यूज हुआ है. ठीक है, सो हाउ मच इज द रिमेनिंग नाउ? अब देखें, उस दिन डे 7 के दिन जो प्रोडक्शन हुई है 1200, उसमें से कितना यूज हुआ है? उसमें से 240 यूज हुआ है. यू कैन सी हेयर यूज्ड में 240 प्लस आप में से आपका जो पिछले दिन का फैब्रिक था 4,498, उसमें से आपने माइनस कितना किया है? 449.8. 449.8.
वेरी गुड। तो ये आपने माइनस कर दिया। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ठीक है, और फाइंड आउट द आंसर। तो आपके पास आंसर आता है रिमेनिंग फैब्रिक ऑन डे 7 इज 508.3। ठीक है, ठीक है, meters. मीटर। So because it is तो word problem, बिकॉज इट इज so वर्ड प्रॉब्लम, तो at the end of the calculation, you will write down hence after day 7, you will write down after day 7, the remaining the factory, which factory? This was a textile factory. ठीक है, the factory has 5,008.3 meter remaining fabric. ठीक है, so in word problem you need to answer the question according to the question asked in the question statement. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देखें वर्ड प्रॉब्लम मैंने शेयर किया आपके साथ ये प्रॉब्लम्स. सो द क्वेश्चन वाज एट हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट आफ्टर डे 7. सो हमने लिखा आफ्टर डे 7 द फैक्ट्री हैज 5,008 meter remaining fabric, या 5,008 meter fabric was left. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिमिलर क्वेश्चन. उस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पर टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, वहां पर एक टॉय स्टोर है, और इस टॉय स्टोर में क्या होता है, इनिशियली देयर आर 2500 टॉयज इन स्टॉक. एवरी डे दे सेल 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड ऐड 150 न्यू टॉयज. ठीक है, हर दिन क्या होता है, जैसे यहाँ पर था इसी तरह की सिचुएशन है, हर दिन वो 7% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज सेल करते हैं और 1500 टॉयज नए लेकर आते हैं. तो आपने ये बताना है कि आफ्टर 1 वीक हाउ मेनी टॉयज वर सोल्ड. ठीक है, so do you want me to solve this question because it's a similar question, or you can attempt it on your own? What do you say? जी मैम बेटे. एक पार्ट करा देंगे एंड नेक्स्ट हम खुद कर लेंगे. लाइक एक दिन का कैलकुलेट कर ले. यस मैम. ओके बेटे, ओके. So we are going to do question number 4. ठीक है, so we are using Cantep book today in Aya. I have shared the questions या word problems in the group. ठीक है, you can see from there. So question number 4 is, अच्छा, a toy store is initial stock अगर मैं लिखूं, so what is the initial stock, यानी कि when the toy shop opened, so the initial stock was 2500 toys. ठीक है, initial stock is 2500 toys. So now we are going to write down. अब देखिए हमें क्वेश्चन में फाइंड ये करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पता करना था हाउ मच इज लेफ्ट, इस क्वेश्चन में हमने पता करना है हाउ मच इज सोल्ड. ठीक है, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे लाइक जस्ट सिमिलर वे. डे 1, फर्स्ट डे पे कितना सेल हुआ. सो सेल ऑन डे 1, अब देखिए उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, उन्होंने कहा है कि सेल इज 7% ऑफ द रिमेनिंग ट्वाइस. 7% of the remaining twice. So it means 7% of, अब पहले दिन remaining twice कितने होंगे, जितना स्टॉक है. ठीक है, सो पहले दिन 7% ऑफ 2500 होगा. ठीक है, पहले दिन कितनी सेल होगी, 75% ऑफ द स्टॉक. ठीक है, क्योंकि पहले दिन पिछले दिन का तो कुछ बचा हुआ है ही नहीं, 7% ऑफ
अगर आप ये फाइंड आउट करें, सो आपके पास ये कितनी वैल्यू आती है? 7, ये 100, 7/100 हो जाएगा ना। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इसके दोनों जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इफ यू मल्टीप्लाई 25 विथ 7, 7 5s are 35 and 7 2s are 14, 14 plus 3 is 17. So 175 टॉयज आपके डे 1 पे सेल हुए हैं। अब आपने ये फाइंड करना है कि द रिमेनिंग स्टॉक कितना है, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने उस स्टॉक का 7% निकालना है। तो पहले दिन स्टॉक कितना बचेगा? अब देखें 2500 में से 175 टॉयज सेल हुए हैं, तो 2500 में से 125 सेल हुए हैं, बाकी आपके स्टॉक में ही हैं, आपकी शॉप पर ही पड़े हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2500 माइनस 175 प्लस आप कितने टॉयज डेली नए लेते हैं? आप 150 टॉयज डेली ले रहे हैं, तो ये कांस्टेंट नंबर है जो आप हर दफा ऐड करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना आता है बेटे? ये आपके पास आ जाता है 25, 25 नहीं 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 सॉरी, नॉट दिस। ये आ जाता है 2500 माइनस 75 करें तो ये आता है 2475। ठीक है, 2475 टॉयज आपके पहले दिन के बाद स्टॉक में है। सो व्हाट विल हैपन ऑन डे 2 देन? व्हाट विल हैपन ऑन डे 2? जी बेटे, सो डे 2 पे आप क्या करेंगे? कितना सेल होगा? अब हर दिन आपने ये दो चीजें निकालनी है, एक सेल कितनी हुई है और दूसरा स्टॉक कितना है। ठीक है, अब डे 2 पे सेल कितनी होगी? 7% ऑफ वॉट? कोई मुझे बताएगा? 7% ऑफ वॉट? 2500 नहीं, नॉट 2500 बिकॉज दे सेड वन 7% ऑफ रिमेनिंग टॉयज। तो रिमेनिंग टॉयज कितने हैं? 2470। 2475 ठीक है, 7% ऑफ 2475, इसको कैलकुलेट अगर करके मुझे बताएं बेटे, व्हाट इज द आंसर? 7% ऑफ 2475। इसका आंसर अगर आप निकालें, हम यूजिंग अ कैलकुलेटर टू सॉल्व इट, आप भी कैलकुलेटर यूज कर लें, तो ये आंसर आपके पास आता है 173.25। ठीक है, दूसरे दिन आपकी सेल कितनी हुई? 173 टॉयज आपके सेल हो गए। अब देखिए, आप यू विल से द रिमेनिंग स्टॉक। अब रिमेनिंग स्टॉक आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक तो 150 आप हर रोज नए टॉयज ले रहे हैं, ठीक है, यस, और दूसरा आप क्या कर रहे हैं, जो पिछले टॉयज हैं उनमें से इतने सेल हो गए हैं। तो एक तो आप ये करेंगे 2475 में से आपने 173 टॉयज क्या किए हैं, बिकॉज टॉयज डेसिमल में नहीं हो सकते, तो आई एम यू नो रिमूविंग दिस डेसिमल, मैं इसको राउंड ऑफ करी हूँ, प्लस 150। ये क्लियर है ना? ये 150 कहाँ से आ रहा है? ये हर रोज हम नए टॉयज खरीद रहे हैं। 24 माइनस 173 प्लस 150। सो इसका आंसर कितना आता है बेटे? टू 2302। I hope you are having calculator. You can find out answer for me also. ठीक है, सो डे 2 के बाद आपके पास कितने टॉयज हैं? 23, सॉरी 150 ऐड ही नहीं किया मैंने, इसमें 150 ऐड भी करना है ना? यस सही, मैंने माइनस किया है, 150 ऐड नहीं किया।
सो अगर आप इसको 150 ऐड करें तो ये आपका फाइनल आंसर आता है बेटे 2452। ऐसे ही है? यस मैम। ठीक है बेटे। तो आपके पास 2452 थे सेकेंड डे स्टॉक में। ठीक है, इसी तरह आप डे 3 निकालेंगे। सो डू यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टिल डे 7 और कैन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन? डे 3 पे भी आप ऐसे ही करेंगे, 7% ऑफ 2452। ठीक है, फिर आप सेल निकालेंगे और जो सेल है उसमें से आप रिमेनिंग्स को, और एट द एंड ऑफ डे 7 आपने क्या करना है, आपने हर दिन की सेल्स को ऐड कर देना है। नाउ कैन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन? यस मैम। बेटे व्हाट अबाउट अदर्स, कैन यू सॉल्व इट ऑन योर ओन? आप गिने, नाया? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? आप गिने, व्हाट डू यू से? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर कि you need to calculate sale and the remaining stock? So can you do the rest of the days on your own? Can you calculate them on your own, bete? Or do you want me to calculate? What do you say? आप गिने। So Maheen, then I will go with your answer. You said I can do it on my own. ठीक है? यस So मैम। let's, okay bete. So please solve it So please completely. call ओके मैम। We will move on to question number 5. So question number 5 is, a scientist is working with a temperature of 300 Kelvin. So the temperature is given in 1 unit. And आपने ये याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन हमने लेसन 5 में किए थे from NBF book. So the temperature given is basically, the temperature is 310 kelvins. अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है कि देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। एक तो आपको पता है सेल्सियस है, ठीक है, जिसमें हम यूजुअली टेम्परेचर मेजर करते हैं, सेल्सियस। एक आपको पता है यूनिट है फ़ारेनहाइट। ठीक है, अक्सर जो ह्यूमन टेम्परेचर आपने साइंस की बुक में पढ़ा होगा कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज दिस मैनी फ़ारेनहाइट। और एक थर्ड यूनिट है हमारे पास केल्विन। तो टेम्परेचर की ये तीनों जो यूनिट्स है ना, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, उन्होंने हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया है एंड दे आर आस्किंग यू टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, सो they asked us to convert the temperature in convert the temperature in Celsius and Fahrenheit. Celsius and Fahrenheit. ठीक है बेटे, so the formulas are given in the question. So Kelvin to Fahrenheit, if you convert, so the formula is that Fahrenheit is equal to, ये आपके formula book में given है, ठीक है। So Fahrenheit is equal to Kelvin multiply by 9/5 minus 459.67। ये आपके पास फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, केल्विन टू फ़ारेनहाइट चेंज करने का फॉर्मूला है। ठीक है, सो केल्विन में आई नो द दैट टेम्परेचर इज 310 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, माइनस 459.67। so now I will calculate this answer through calculator। ठीक है, चाहे आप पूरी वैल्यू इसी तरह लिखते हैं कैलकुलेटर में, 300 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दैट, और इसका आंसर निकालें। आई एम राइटिंग द फुल expression in the calculator to find the answer. So the answer is 990, answer is 98.4
33 Fahrenheit. Fahrenheit baby, we put a circle just like we put this circle on the Celsius या centigrade में हम जैसे use करते हैं, ठीक है. Now comes the formula Ma'am, of जी बेटे. ma'am, will it be 459.67 or 495.67? Oh, let me confirm. Just give me a minute. Let me confirm the formula. 459 है. So I have written this wrong. Thank you, Naya. Thank you for telling me, bete. This I have written like I have changed the position of the numbers. So it is 459.67. But I have used the correct value in the calculator. Let me check. 459.67 ही लिखा है यहाँ पर. I think so. I have written in is incorrectly. So I have calculated this through calculator. 310 by multiply by 9 by 5 minus 459.67. आप verify भी कर सकते हैं. So the answer is 98.33 Fahrenheit. ठीक है. So this we have changed the temperature from Kelvin to Fahrenheit. So now we are going to change the temperature from Kelvin to centigrade. This formula is quite easy. So the formula is Kelvin to Celsius. The formula is just K minus 273.15. This is the formula, simple formula. How to convert Kelvin into Celsius or centigrade? We will just use this formula, K minus 273. So K is 310. So you will say 310 minus 273.15. So if you calculate this value also, so your answer would be, let's calculate it quickly. 85, and then it is 309 minus 273. So 9 minus 3 is 6. And 30 minus 27 is 3. So 36.85 degrees Celsius. Okay. So this was a simple temperature conversion question where you have converted a given temperature in Kelvin to Celsius and Fahrenheit. All right. So next question is again a temperature question related to temperature, but that is not a simple conversion. That is an analytical question, you can say. Question number 6. Okay. So question number 6 is that the mean temperature from January in Murray is -1 degree Celsius, while in July it is 18 degrees Celsius. Okay. We are going to solve question number 6. So then the mean temperature in Kashmir is in January it was 56 degree Fahrenheit, and in July it is 104 degree Fahrenheit. So calculate these temperature in the opposite scale and determine which city has a larger temperature range. Okay. So we have to convert them into the same you can say unit. So if I write the data first, so हमें ये उन्होंने बताया हुआ है कि in Murray हमने रेंज निकालनी है, हमने डिफरेंस निकालना है टेम्परेचर्स का. सो इन मरी द सिचुएशन इज के इन जनवरी द टेम्परेचर वाज -1 degree Celsius, and in July the temperature goes up to 18 degrees Celsius. So there is a word used, mean temperature. मीन टेम्परेचर का ये मतलब है कि डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा ना कि जनवरी में हर दिन मरी में टेम्परेचर -1 हो. तो जितना भी टेम्परेचर है उसका एवरेज कैलकुलेट करके आपको बताया कि जनवरी में एवरेज या मीन टेम्परेचर कितना था, -1 डिग्री सेल्सियस था.
ठीक है. सो नाउ कम्स कश्मीर. कश्मीर में हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है दैट इज इन फ़ारेनहाइट. सो कश्मीर में बेसिकली द लोएस्ट टेम्परेचर इज 56 जनवरी में जो था, सॉरी लोएस्ट नहीं, 56 फ़ारेनहाइट and the highest temperature was 104 Fahrenheit. So now the question is, ये हमें data given है. Now the question is that we need to find out कि किसकी रेंज ज्यादा. अच्छा, देर आर टू क्वेश्चंस. एक तो उन्होंने हमें ये कहा है कि कैलकुलेट दिस टेम्परेचर इन ऑपोजिट स्केल. हमने दो काम करने हैं. एक, हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इन ऑपोजिट स्केल, यानी कि जो मरी का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, इन फ़ारेनहाइट. और जो कश्मीर का फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है उसको हमने कन्वर्ट करना है इन सेल्सियस. सो पहला काम हमने ये करना है. क्वेश्चन में इट इज रिटन कैलकुलेट टेम्परेचर इन ऑपोजिट. सो कैलकुलेट इन ऑपोजिट स्केल्स. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट. कैलकुलेट इन ऑपोजिट स्केल्स. ऑपोजिट यूनिट्स और स्केल्स एक ही बात है. ठीक है. सो अब देखिए, मरी में -1 डिग्री सेल्सियस है. जब -1 डिग्री सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूंगी, सो वी हैव जस्ट रिटन के द फॉर्मूला फॉर फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, सेंटीग्रेड प्लस 9/5, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32. ठीक है. ये हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इन द बुक. प्लस 32. So you will simply replace the value for -1 degree Celsius. आपके फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन कितनी हो जाएगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 9/5. बेटे, आई वॉन्ट यू टू पुट दिस वैल्यूज इन आंसर. प्लस 32. else I will do it on my own. तो -1 degree Celsius in Fahrenheit is, let me calculate. इसको इसी तरह फॉर्मूला में डालकर आंसर निकालना है आपने. सो इट्स गुड टू हैव द कैलकुलेटर इन हैंड. -1 into 9/5 प्लस 32. आपके पास आंसर आता है 30.2 फ़ारेनहाइट. ठीक है. सो -1 डिग्री सेल्सियस इज 30.2 Fahrenheit. So now we are converting 18 डिग्री सेल्सियस. सेम फार्मूला हम यूज करेंगे. सो 18 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, you will say 18 multiply by, so it's better to have calculator in hand so that you can find the answer with me. So 18 multiply by 9/5 plus 32, same formula. ठीक है. और just put these values इसी तरह on the calculator. Just write down on the calculator 18 plus 9, 18 multiply by 9/5 plus 32. ठीक है. So I have calculated the answer. It is 64.4 Fahrenheit. ठीक है. 64.4 Fahrenheit. ठीक है. ये अब मैंने क्या किया, मरी के टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया. ठीक है. So now I will convert temperature of Kashmir from Fahrenheit to Celsius. ठीक है. So Fahrenheit to Celsius कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट माइनस, जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, -32. अब ये एक्चुअली उसी फॉर्मूला का उलट है. आप देखिए, उस फॉर्मूला में प्लस हो रहा था 32, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, -32 करेंगे. उस फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 9/5 से, इस फॉर्मूला में हम मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से, उलट कर दिया हमने, ठीक है, दोनों चीजों को, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए जनवरी में जब द टेम्परेचर वाज 56 फ़ारेनहाइट, ठीक है, सो 56 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था, अगर हम उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो दिस वुड बी 56 - 32 और मल्टीप्लाइड विद 5/9, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में आपने याद रखना है, इफ यू आर यूजिंग कैलकुलेटर, सो आपने ये ब्रैकेट जरूर डालनी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो वो पहले मल्टीप्लाई कर देगा। बोर्ड मैथ्स के तहत मल्टीप्लिकेशन कम्स बिफोर सब्ट्रैक्शन, सो बेसिकली मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए आपने ये ब्रैकेट लाजमी डालनी है। या फिर आप पहले ये कैलकुलेट कर लें, व्हाट इज 56 - 32, जो आंसर आता है उसको आप 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर आता है। आई हैव कैलकुलेटेड इट, इट इज 13.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटे, आई होप दिस इज क्लियर। यस मैम। ठीक है, इसमें आपने ऑर्डर का जरा ख्याल रखना है। इफ यू आर not putting this bracket, so your answer will go wrong, ठीक है। So now in July the temperature was 104 Fahrenheit, आपने 104 Fahrenheit को भी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 104 - 32 इन द ब्रैकेट, ठीक है, ये पहले करना आपने, मल्टीप्लाई बाय 5/9। सो अगर आप इसका आंसर निकालें तो ये आपके पास आंसर आता है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने दोनों कन्वर्जन्स कर लिए हैं, ठीक है। अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि which city is having more, the temperature range is more in which city। अब मेरे पास दोनों वैल्यूज हैं, अगर मैं मरी की रेंज कैलकुलेट करूं, सो लेट्स चूज सेल्सियस, बिकॉज इस पेज पे मेरे पास सेल्सियस की वैल्यूज लिखी हैं। सो आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि आई नीड टू कैलकुलेट रेंज of the temperature, यानी in which city the temperature varies a lot। so अगर मरी में मैं देखूं तो मरी में the range is, रेंज कैसे निकालते हैं, बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं बेटे, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ये आपने याद रखनी है बात। किसी भी चीज की रेंज कैसे कैलकुलेट होती है, जो बिगर वैल्यू होती है उसमें से आप स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखिए मरी में द बिगर वैल्यू इज 18 डिग्री सेल्सियस सबसे बड़ा टेम्परेचर है, -1 सबसे छोटा टेम्परेचर उसमें क्या था, -1। सो इफ यू कैलकुलेट द आंसर, मरी में द टेम्परेचर रेंज इज 19 डिग्री सेल्सियस। बेटे आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। ठीक है, एंड व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन कश्मीर, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन कश्मीर। सो कश्मीर में ज्यादा टेम्परेचर क्या था, 40, ये मेरे सामने लिखा हुआ है, कन्वर्जन आई हैव डन, ठीक है, बिकॉज आई वांट टू कंपेयर द रेंजेस, सो आई विल यूज द सेम यूनिट। सो 40 माइनस 13.3, ठीक है। इफ आई कैलकुलेट दिस वैल्यू 40 माइनस 13.3, so my answer is 26.7, ठीक है। so which city is having more range, क्वेश्चन में क्या कहा है, determine which city has a larger temperature range, so what you are going to write down, which city is having कश्मीर। that's right, so you will say Kashmir is having, देखिए you need to answer according to the question, so you will say Kashmir is having larger temperature, Kashmir is having larger temperature range,
ठीक है, लार्जर टेम्परेचर रेंज। जी बेटे, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, देयर वर टू पार्ट्स। ठीक है, एक हमने क्या करना था, हमने स्केल्स को कन्वर्ट करना था। जो हमें टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन था हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, जो फ़ारेनहाइट में गिवन था हमने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट किया। और सेकेंडली हमने क्या किया, हमने इसका टेम्परेचर रेंज फाइंड की। रेंज कैसे निकालते हैं, बिगर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू। सो हमने ये देखा कि जो कश्मीर में टेम्परेचर रेंज है जनवरी टिल जुलाई, दैट इज मोर देन द रेंज इन मरी। मरी में आपको पता है टेम्परेचर ज्यादा वेरी नहीं करता, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज्यादा सर्दी भी एक हद तक ही होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, सो द रेंज इज नॉट वेरी मच। So let's solve one more question. What do you say? Can we? Yes, ma'am. अरे बेटे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन। ये जैसे हमने एनबीएफ बुक का क्वेश्चन 1 किया था ना, बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं, जैसे बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। आजकल वी आर ऑल फेमिलियर विद दीज टर्म्स, इनमें कोई मुश्किल टर्म नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास है चेक अकाउंट बैलेंस, फिर है डिपॉजिट, फिर है हमारे पास रोट चेक्स एंड मेक अ डिपॉजिट। सो आपको ये पता होना चाहिए कि इन कीवर्ड्स का क्या मतलब है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज समीना हैज अ चेकिंग अकाउंट बैलेंस। तो समीना का जो अकाउंट बैलेंस है वो कितना है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म इसको, बल्कि हम शॉर्ट फॉर्म में अकाउंट को किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखा जाता है A/C। सो अकाउंट बैलेंस समीना का था, फिर उस अकाउंट पे कुछ ट्रांजैक्शन हो रही हैं, हमने वो कैलकुलेट करके और फाइनल आंसर निकालना है। सो द अकाउंट बैलेंस वाज 20,000 PKR, 20,000 रुपीज। ठीक है, दिस वाज द इनिशियल बैलेंस। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द मंथ शी रोट चेक्स ऑफ। तो उसने एक चेक लिखा, चेक उसने कितने का लिखा, 15,570 रुपीज का। ठीक है, सो शी रोट अ चेक ऑफ 15,570 रुपीज एंड देन शी डिपॉजिटेड। डिपॉजिट करना क्या होता है बेटे? व्हाट डू यू मीन बाय डिपॉजिट? निकलवाना डिपॉजिट करना क्या जी, डिपॉजिट करना क्या होता है बेटे? निकलवाना नहीं, डिपॉजिट होता है जमा कराना। जो उसने चेक लिखा है ये उसका क्या होगा, माइनस होगा, बिकॉज उसने किसी को चेक लिख के दे दिया है। ठीक है, सो दैट मनी विल बी टेकन आउट। डिपॉजिट जो होता है ना, वो ये होता है कि आपने कितने पैसे जमा कराए हैं बैंक में। ठीक है, सो पहले उसने एक चेक लिखा 15,570 रुपीज का, फिर उसने ये पैसे डिपॉजिट कराए। डिपॉजिट मतलब उसने ये पैसे जमा कराए बैंक में। फिर उसने क्या किया, उसने डेबिट कार्ड यूज किया फॉर द परचेज ऑफ सम मनी। सो उसने क्या किया, डेबिट कार्ड यूज किया कुछ चीज खरीदने के लिए। ठीक है, अब ये आपने ऑपरेशंस ध्यान रखने हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसने डेबिट कार्ड यूज करके कितनी अमाउंट यूज की, उसने यूज की जी 1250 रुपीज। उसने कोई चीज खरीदी जिसपे उसे 1250 रुपीज पे करना था, 1250 रुपीज। अब आपने आंसर क्या करना है, आपने ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज द अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आपने उसका अकाउंट बैलेंस निकालना है एट द एंड ऑफ मंथ। सो आई एम राइटिंग एंड हियर, एंड ऑफ मंथ। ठीक है, आप इसको फुली लिख लें बेशक, एंड ऑफ मंथ।
और ये बैलेंस उसका कौन सा है, स्टार्ट ऑफ मंथ है। उसने 1 महीने में ये सारे काम किए अपने अकाउंट पे, तो आपने उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? अकाउंट बैलेंस कैसे निकालेंगे? ये सारी ट्रांजैक्शंस आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले उसके पास 20,000 थे, सो 20,000 में से उसने एक चेक लिख के किसी को दे दिया 15,570। सो व्हाट ऑपरेशन इज गोइंग ऑन? इज इट प्लस और माइनस? जी बेटे, माइनस। माइनस। ठीक है, 15,570 का जब उसने चेक लिखा तो ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, फिर उसने डिपॉजिट कराए, तो डिपॉजिट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इज एडिशन। सो उसने 7,500 रुपीज ऐड किए, और फिर उसने डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट की, कितनी, 1250 की। सो प्लीज कैलकुलेट दीज थ्रू योर कैलकुलेटर एंड टेल मी कि इस सारी ट्रांजैक्शंस के बाद अब उसके अकाउंट में हाउ मच मनी इज देयर? How much money is there? So I am writing answer here. आपने मुझे बताना है कि is this the correct answer or not? So my answer is coming 10,500 rupees. So what do you think? This is the amount of money in. यही आंसर आता माही? No, ma'am. Why not? Oh. So then what is your answer? Ma'am, the answer is 10680. All right, my bad, you're right. 50 and 70. Yes, ma'am. This is 10860. Okay, beta. So Maheen, are you getting the same answer also? 10,860? Yes, ma'am. 60. Yes, ma'am. All right. So beta, this is your answer. Okay, this is the leftover, you can say, account balance at the end of the month. Okay, so we will stop here. We will do, there are total 14 questions in this exercise and we have done half of them. So the remaining questions, inshallah, we will do tomorrow. So I have shared some word problems in the class group as yesterday's homework. So I am giving you time till tomorrow. अगर आपने कल मुझे कहा कि वो questions you can solve on your own, so that is fine. If you cannot solve it on your own, so then you need to tell me tomorrow. ठीक है, उसमें से अगर कोई question आपको समझ नहीं आया तो आपने मुझे कल बताना है, ठीक है बेटा? So with that we will end today's class. Thank you for joining everyone. Take care. Zala Hafiz. See you tomorrow.